पैसे वाला प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे आइडियाज पे, अच्छे टीम पे पैसे लगते हैं। आपके पास रैशनल होना चाहिए कि आप पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। एवरी प्लेटफॉर्म विच इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल is doing only because they own the customer. What are the basic difference between the leaders of startups and founders of startups and the enterprise leadership? You need to own boss. अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो तो आपकी ओनरशिप है, डिसिप्लिन की भी, अकाउंटेबिलिटी की भी, ट्रांसपेरेंसी की भी। ए से बी तक की जर्नी बहुत अलग होती है और फिर उसको एक लेवल के बाद स्केल करना और उसको B2C लेकर जाना इज अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ द गेम। ये आप सब समझ लो कि अगर आप अपने कस्टमर को ओन नहीं करोगे अपनी कैटेगरी में, तो कोई और आके आपके कस्टमर को ओन करेगा। हम सब स्टार्टअप करते हैं, बट आपने एक एंटरप्राइज में स्टार्टअप किया है, विच इज वे टफर देन स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि आप एक ब्रांड की लेगेसी को कैरी करते हो और एक ब्रांड रेपुटेशन मैनेज करते हो। This is hard, or I think this is toughest of all. So there are two things I would like to know. First is, why did you do that or choose that path for your career? Also, how did you do that? एक start करना within the traditional business, ADL को आपने establish किया और उसको within the 3 years duration एक 10 billion के valuation तक पहुंचाना. How did you do that? Yeah, so first of all, I've been very lucky to be here, as I'm lucky to be at a right place, right time. So luck played a huge role in my journey, and God has been very, very kind. And you're right that doing anything for a very traditional enterprise on the change front is not easy. Yes. When you have a startup, everybody in that startup is aligned towards one goal. They have an investor. The investor wants you to achieve that North Star. You guys are aligned to achieve that North Star. So all of you are managing and running towards that one goal. In enterprise, there are a lot of things which are not in your control. A bigger global event will happen. COVID can happen, allegation report can come in. A lot of the backing, funding, support can really change over the period of time, which is not in your control. So you need to have that resilience, belief, and the zid of not giving up. I think these 3 things have worked well for me, but I'll be fooling you if I don't acknowledge that it was very, very tough. It's not everybody's cup of tea. Running a startup is, in from where I see it, is easy compared to It is. what you need to do on a continuous basis at this complex global forum. It means way different. एटलीस्ट हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। हाँ, सो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों बहुत सिमिलर डीएनए के रोल हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपने बॉस होते हो, आपके पास चॉइस होती है कि आप पैसा उठाओ या ना उठाओ, कौन से इन्वेस्टर को लाओ। एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं है, आपको ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलाइन होकर चलना पड़ता है और बिगर गोल्स के साथ भी आपको वो अचीव करना ही पड़ता है। सो not a easy cup, 100%. I still remember there was one event where I was invited and I have shared कि we do digital not transformation but we digitally develop the websites and application. So there was one gentleman came afterwards and they said कि हमारे ना 10 पेट्रोल पंप हैं, इनफैक्ट 20, हम इसको कैसे डिजिटलाइज या सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो आई जस्ट शेयर्ड अ ब्रीफ कि बिल्कुल पॉसिबल है एंड लेट्स मीट आफ्टर द इवेंट एंड हैव अ डिस्कशन। तो बोलते हैं ये मेरा बेटा है, ये पीछे पड़ा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना जरूरत नहीं है मुझे। It's very tough to convince these people who are in traditional business for so long. How did you do that? I mean, setting up ADL. So it's a very beautiful question जो आप पूछ रहे हो। तो जो वो पेट्रोल पंप का जो ओनर है, जो वो कह रहा है कि मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है,
ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटे के लिए कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो भी जानता है कि उसका बेटा बोला धंधा नहीं करेगा, उसका बेटा फ्यूचरिस्टिक धंधा करेगा। और ये आप सब समझ लो कि अगर आप अपने कस्टमर को ओन नहीं करोगे अपनी कैटेगरी में, तो कोई और आके आपके कस्टमर को ओन करेगा। एवरी प्लेटफॉर्म which is doing extremely well is doing only because they own the customer. They are solving for customer, they are enhancing their lives, creating a value, and hence customer is coming back. There is nothing else more than customer in any business. B2B, D2C, B2B2C, everywhere that customer centricity, that empathy is very important. If you don't have understanding of a customer, you will flunk somewhere or other. So that involves educating them. That means going back again and again, again and again, again and again, taking the beating, And educating them, holding your ground, having small wins, and continue to prove that the team is on the right track. So now from the startup and founders perspective, since फाउंडर्स को भी बहुत स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग में, और स्ट्रगल भी सेम है, पर्सपेक्टिव बस डिफरेंट है कि हमें पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है, हमको इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना होता है, सेलिंग द सेम इनोवेटिव आइडिया टू गेट इनिशियल सपोर्ट, इनिशियल बैकिंग एंड इनिशियल फंडिंग. सो व्हाट डू यू सजेस्ट देम हाउ दे कैन डू इट? आई मीन इनिशियल सपोर्ट अगर मिल जाए तो जितने आज यहाँ पे 15-20 लोग आपने काउंट किए थे, आई थिंक दे ऑल गोना बी एंटरप्रेन्योर्स नेक्स्ट ईयर. हाँ यार, आज 20, 22, 23 साल का बच्चा है, उसके पास एनर्जी है, उसके पास अभी दाल रोटी वाली टेंशन नहीं है, उसके पास अभी फैमिली की ऑब्लिगेशन नहीं है. स्टार्टिंग अर्ली इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग. मयंक एंड यू बोथ स्टार्टेड वेरी अर्ली. बहुत टफ था, है ना? टफ था, तब का टाइम बदल था. आज एक डेकेड के बाद टाइम बहुत अलग है. आज ये इकोसिस्टम है इंदौर में. 10 साल पहले इकोसिस्टम नहीं था, तुम लोगों ने वो बनाया. तो आई थिंक ये सारे प्रोसेस में सेल्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. पहले सेलिंग टू योरसेल्फ, कन्विंसिंग यू, कन्विंसिंग योर फैमिली, एंड देन कन्विंसिंग द इन्वेस्टर और अ मेंटर और अ बैकर. तो जिसको सेल्स आती है और ना बोलना आता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए. जिसको ईगो है और वो बोलता है कि नहीं यार, मुझे तो आइडिया है और मैं सबसे अच्छा करूंगा और इन्वेस्टर मेरे घर पे चल के आएगा, तो वो घर पे बैठेगा. तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कन्विंस करना इनिशियल डेज में, और नहीं है तो इनको पकड़ लेना बाद में, बिकॉज इन्होंने किसको कन्विंस किया वी ऑल नो, toughest of all. So yeah, I mean, you worked in startups, you worked in enterprises, you have worked in the different leadership styles. नौकरी, इंडिगो, क्विकर, उनका एक अलग तरीका काम करने का फाउंडर्स का. कैन यू जस्ट शेयर व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लीडर्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड फाउंडर्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड द एंटरप्राइज लीडरशिप? क्योंकि स्टार्टअप की जर्नी का अलग तरह से चलती है, बट जो आज एंटरप्राइजेस ने कर रखा है वो नेक्स्ट लेवल है. ट्रेडिशनल बिजनेस, नेक्स्ट लेवल रेवेन्यू, नेक्स्ट लेवल ग्रोथ. So there must be something very key difference there. It's a very, very interesting question, and I may get some bashing for this. But, being blunt is always good. तो कुछ फैंसी वर्ड्स अगर हटा देते हैं कि एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप फाउंडर, सीईओ, एसएमई, IPO business owner, enterprise chairman. Ultimately, everybody is a businessman. Somebody is a small business, somebody is a large businessman. सब लोग धंधा चला रहे हैं. And in धंधा, ultimately you need to create value for yourself, your shareholders, your partners, your customers. So in the journey, whether I've worked for Times of India Group, Bharti Airtel, Rediff, InfoEdge, which is Naukri.com, 99 acres, Jeevan Sathi Shiksha. Quite a portfolio. Yatra, Indigo, and now with Adani Group. One thing which is common, if you know the art of
creating a value selling to the customer by identifying the sweet spot, the pain point, and you know कि बॉस इसके बाद का नेक्स्ट वर्टिकल मैं क्या करूंगा. तो ना Naukri.com एक कैटेगरी में रहा, ना इंडिगो एक कैटेगरी में रहा, ना अदानी एक कैटेगरी में है. सो सब लोगों ने एडजेसेंसीज पे ग्रोथ किया. तो अगर धंधा समझ गए तो बिजनेसमैन से आप वही सीखते हो, द आर्ट ऑफ डूइंग द वैल्यू क्रिएशन, एंड दैट इज कॉमन अक्रॉस whether it's somebody who's raised a series A, somebody who was going for the IPO, somebody who became a unicorn founder, or somebody who's going to be a $1 trillion. बट एक बेसिक डिफरेंस है ना दैट वी सी कि स्टार्टअप्स जैसे यू हैव मेंशन लेंसकार्ट एंड जोमेटो रिसेंटली बिकम प्रॉफिटेबल. वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है लेंसकार्ट, बट ये जो बिजनेसेस हैं इनका जो लीडरशिप स्टाइल है, आई गेस देयर फोकस इज ऑन प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली. But on the other side, startups keep innovating, keep reinvesting, and wait for the right time to make it, profitable. No, I think मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है आपसे कि ऐसा नहीं है कि सारे बिजनेसेस प्रॉफिटेबल हैं. हर बिजनेस का एक एज है. आज बड़े से बड़े ग्रुप के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इंक्यूबेटेड बिजनेस है, उनको प्रॉफिटेबिलिटी में टाइम लगता है. तो एक इन्वेस्टमेंट स्टेज है, पहले तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्टेज है, फिर इन्वेस्टमेंट स्टेज है जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग के बाद बनेगा, फिर वैलिडेशन स्टेज है, फिर ग्रोथ स्टेज है. उसके कहीं पे बीच में आप प्रॉफिटेबिलिटी हिट करते हो और एक्सपेंशन हिट करते हो. तो सारे बिजनेसेस प्रॉफिटेबल नहीं होते. कुछ बिजनेसेस हैबिट फॉर्मेशन के साइकिल में आते हैं कि ऐसा पहले होता ही नहीं था. तो आप मार्केट को एजुकेट कर रहे हो, इकोसिस्टम में पार्टनर को एजुकेट कर रहे हो, कस्टमर को एजुकेट कर रहे हो. कस्टमर में डिस्काउंटिंग लगेगी, पार्टनर में हैंड होल्डिंग लगेगी, क्रिएट करने में ज्यादा पैसा लगेगा क्योंकि पहले नहीं बना हुआ, नो हाउ नहीं पता है. तो जब आप वो सब करते हो तो पैसा बर्न होता है. बट आज कुछ भी नेशनल लेवल का करने के लिए, हिंदुस्तान में कुछ अगर ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए करना है तो वो इन्वेस्टमेंट तो जानी पड़ेगी. अब अगर हमें अमेजॉन बनाना है, गूगल बनाना है, टेस्ला बनाना है, तो अदानीज को, टाटास को, रिलायंस को ये करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें लॉन्ग टर्म अप्रोच लेना पड़ेगा. बट एक्चुअली हमारा इकोसिस्टम कुछ इस तरह से टर्न अप हुआ है अभी रिसेंटली. इवन द स्टार्टअप्स आर डूइंग गुड, रेवेन्यू थोड़ा स्लो है, कम है, बट दे हैव गुड प्रोस्पेक्ट. बट अभी शार्क टैंक में भी एज यू मेंशन कि लोगों को सबसे पहले प्रॉफिट चाहिए. ऐसे स्टार्टअप्स के लिए फंड रेज करना इनिशियल डेज में बहुत डिफिकल्ट होता है. हाँ, so आपको सब टाइप के इन्वेस्टर मिलते हैं, आपको सब टाइप के बैकर मिलते हैं. नाउ देयर आर फंड्स और इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म आइडियाज पे बैट कर रहे हैं. देयर आर फंड्स एंड इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी देखती हैं. हर बिजनेस की एक स्टोरी और नीड अलग है. और अभी हमारा इकोसिस्टम काफी मैच्योर्ड है. ग्रोथ और चाहिए, और काम चाहिए. आपको इंदौर में भी बहुत काम चाहिए, बट इवॉल्व तो हो रहा है. वी आर ऑन अ राइट डायरेक्शन, दैट आई सी. एंड ऐसा नहीं है कि आपको बैकर्स नहीं मिले थे. हाँ, आपको दिल मांगे मोर है कि आपको ज्यादा बैकर चाहिए, तो हाँ सबको चाहिए. बट ऐसा नहीं है कि आपको बैकर नहीं मिले, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इकोसिस्टम नहीं है. वी आर सीइंग द इकोसिस्टम. अब आप लोग फंड बनाओ अपने स्टार्टअप्स के लिए, उसको सपोर्ट करो तो क्यों नहीं हो जाएगा. पैसे वाली प्रॉब्लम तो है नहीं बॉस, पैसा तो बहुत है इस रूम में. देयर इज लॉट ऑफ मनी. इंटेंट चाहिए, इंटेंट भी है, बट इंटेंट कांट बी कि मैं सिर्फ अपनी कंपनी ग्रो करूंगा. इंटेंट होता है कि मेरे साथ 3-4 और कौन सी कंपनीज ग्रो करती हैं, तभी इकोसिस्टम ग्रो करेगा. So with the evaluation thought, I would like to know your thoughts on this. Recently we have heard this many times. पहले लोग बोलते थे कि आइडिया चाहिए, and we do invest in founders. मतलब बस में नहीं, हम ड्राइवर में इन्वेस्ट करते हैं. Now suddenly post COVID the equation has changed. अब लोग बोलते हैं पहले धंधा दिखाओ, फिर तुम ये दिखाओ कितना बनेगा, कब बनेगा, फिर हम फंडिंग की बात करेंगे. So do you agree to this change? So
50-50 करते हैं कि आज भी पैसे टीम पे ही लगते हैं। वी आर इन द बिजनेस ऑफ पीपल, फॉर पीपल, बाय पीपल, करेक्ट? सो पैसे तो टीम पे ही लग रहे हैं। अगर आज फाउंडर सिंसियर है या एंटरप्रेन्योर सिंसियर है तो उसको बैकर मिल रहे। अब आप आंख बंद करके पैसा बहाने के लिए बोलोगे तो वो मार्केट नहीं है। आप भी नहीं कर रहे हो ना वैसा। आज इंडियन माइंडसेट में और ग्लोबली भी काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो अब हिंदुस्तान में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान का पैसा है, हिंदुस्तान में बाहर का बहुत पैसा आ रहा है। पैसे वाला प्रॉब्लम नहीं है। आपका आइडिया का एस्पिरेशन कितना है। आपका आइडिया अगर सिर्फ आपको 10, 20, 50 मिलियन, 100 मिलियन पैसे बना के रिटायर होने का है तो आप पे लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैसे नहीं बनाएगा, नहीं बेट करेगा। तो आपका सपना ही छोटा होता है। मुझे लगता है कि हम लोग कम बड़ी सक्सेस में खुश हो जाते हैं। यस, अग्रीड। तो वो जो बड़ा सपना है कि मैं यहां से बैठ के, इंदौर से बैठ के ग्लोबल कंपनी क्यों नहीं बना सकता, मैं ग्वालियर से बैठ के ग्लोबल एजेंसी क्यों नहीं बना सकता, मैं यहां से सबसे बड़ा SaaS प्लेटफॉर्म क्यों नहीं कर सकता, या सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों नहीं लग सकता। लग सकता है यार, लग रहा है। बट हम वो 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ तक पहुंच के खुश हो रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहां पे और हंगर और चाहिए तो बन जाएगा ना भाई। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे फैमिली हाउसेस चाहिए। हिंदुस्तान भी $12 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10-12 ट्रिलियन इकोनॉमी तभी बनेगा जब यहां से भी 10, 15, 20 यूनिकॉर्न आएंगे। तो आने पड़ेंगे। दोबारा कह रहा हूं, पैसे वाला प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे आइडियाज पे, अच्छे टीम पे पैसे लगते हैं। आपके पास रैशनल होना चाहिए कि आप पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि मैं पैसा खर्च कर रहा हूं और इस बार खर्च करा था, अगली बार कस्टमर से वसूल लूंगा, और आपका वो डेटा सपोर्ट करता है, मैट्रिक्स डायरेक्शनली सपोर्ट करता है, तो पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपको नहीं कह रहा कि एक ही बार में कर दो। बट अगर आप कहोगे कि नहीं मैं बताऊंगा ही नहीं, पता ही नहीं है, बस बिलीव करो, तब नहीं हो रहा ना। कॉन्फिडेंट टीम विंस। You need to dig deeper and know much more than. यू नीड टू ओन बॉस। अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो तो आपकी ओनरशिप है। डिसिप्लिन की भी, सिंसियरिटी की भी, अकाउंटेबिलिटी की भी, एंड ट्रांसपेरेंसी की भी। आज आप पैसा उठाओ, ढंग से रिपोर्ट करो, अच्छी टीम लाओ, टीम को साथ में ग्रो करवाओ, बनेगी वैल्यू, बन रही है वैल्यू। इतने सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। हम लोग ज्यादा ऑप्टिमिज्म की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, नेगेटिविटी ज्यादा बिकती है। तो नेगेटिविटी ना बेच के पॉजिटिविटी करो। कम टेकर मिलते हैं बट क्वालिटी वही है। So as you mentioned कि पैसा आज भी टीम पर लगता है, पहले भी टीम पर लगता था। Can you throw some light कि how to build that team? Even you have built a team in ADL in super fast speed, but you have really figured out कि किस टाइप के लोग चाहिए, कैसे चाहिए और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। वो टीम ढूंढने में बहुत फाइट आता है, स्पेशली इन इनिशियल डेज। 100%। What are those key factors that everyone should look for? हाँ तो देखो यार, मैंने ना इंटरप्रेन्योर की तरह टीम बिल्ड किया है, और उसमें क्या होता है कि पैसे वाली प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने विजन बेचा, सबको अलाइन किया, और इट वाज बिग इनफ गोल टू मेक एवरीबॉडी एक्साइटेड। सो आई थिंक अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे का लिबर्टी नहीं है तो आपका आइडिया, इम्पैक्ट और वैल्यू क्रिएशन पोटेंशियल, ये 3 चीजें बड़ी अच्छी होनी चाहिए। कि उसको ये जरूर लगना चाहिए कि मेरी जिंदगी इससे बदलेगी, मेरी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन विल बी वेरी डिफरेंट इफ आई डू दिस। राइट। हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ पहुंचाया, हमने अपने बच्चों को यहाँ पहुंचा रहे हैं। तो अब जो ये 18 साल का, वो 21 साल के जो बच्चे बैठे हैं, इनके सपने बड़े हैं, इनकी हंगर भी बड़ी है, बट इनको उतना हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। तो अच्छे लोगों को ढूंढना इज एन आर्ट, और उसमें टाइम लगता है। तो जल्दबाजी मत करो, ठोक बजा के अपनी कोर टीम बनाओ। और कोर टीम में पिलर और वॉल का फर्क होता है कि पिलर खड़ा रहेगा, वॉल चेंज हो जाती है। कमरा बड़ा करना है तो टूट जाएगा,
राइट, बट पिलर नहीं तोड़ोगे, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो कोर टीम जो 10% लोग हैं जो आपके साथ 10 साल खड़े रहेंगे, वो बहुत ध्यान से लाओ, और बाकी नीड बेस्ड करते रहो। सारे लोग आपके साथ सारे टाइम नहीं रुकेंगे। 10-15% attrition every year is a good attrition in my personal experience, without owning it to any brand or linking it to any brand. So now, startups का scenario again, let's talk about that. A से B तक की जर्नी बहुत अलग होती है, I mean 0 to 1, और फिर उसको एक लेवल के बाद स्केल करना और उसको B2C लेकर जाना इज अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ द गेम। एक फाउंडर के लिए इस पूरे ड्यूरेशन में अपने स्किल सेट को कैसे ट्रांजिशन करना चाहिए? क्योंकि स्टार्ट करना इज इजी, हम सब कर देते हैं, देन वी सी हम भी बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 10 में से 8 स्टार्टअप फेल होते हैं और 2 ही सक्सेसफुल होते हैं। बट वो एक्सेप्टेंस इतना इजी, हम बात ही नहीं करते कि जो 8 फेल होते हैं वो क्यों फेल होते हैं। तो देख अदिति, मुझे ना रियल एस्टेट में काफी इंटरेस्ट है, तो मैं एग्जांपल थोड़ा वैसा दे रहा हूँ कि ठेकेदारी में बनाने वाली टीम और इंटीरियर डेकोरेशन वाली टीम अलग है। जो धंधा बनाएगी और जो धंधा चला के ग्रो करेगी, वो 2 अलग लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपको एक स्टेज के बाद थोड़ा यंग ब्लड, थोड़ा न्यू एनर्जी चाहिए होता है, एटलीस्ट सम परसेंटेज ऑफ इट विच विल डू अ वेरी डिफरेंट जॉब। अब जिस आदमी ने ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए काम नहीं किया, पर बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा लीडर है आपका, बट उसने कभी सऊदी या न्यूजीलैंड या यूएस यूके के लिए सॉल्व ही नहीं किया, वो कैसे करेगा? आप कह सकते हो कि वो सीखेगा, मेरे साथ लॉयल है, बट या तो आप 5 साल वेट करो, 3 साल वेट करो, या बोलो कि एटलीस्ट इस काम के लिए मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लाऊंगी और ये रोल अलग होगा। तो एंटरप्रेन्योर को ना थोड़ा सा इमोशन लेस होके कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं कि धंधे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और धंधे के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो कई बार मेडिसिन की तरह होता है कि कड़वा होता है, मीठी मीठी चीजें ठीक नहीं करती, बहुत कड़वा है ना। सो पिविटिंग एंड चेंजिंग विद टाइम, और हर बिजनेस चेंज हुआ है। ऑल द ब्रांड्स आई हैव वर्कड फॉर, वो जो शुरू हुए थे जो आज है बहुत डिफरेंट है, जिस स्टेज पे शुरू हुए थे जहां पहुंचे वो भी डिफरेंट है। अब अगर मैं पहले अपने पहले ब्रांड में आज तक रहता, लेट्स से 24 इयर्स, 25 इयर्स, तो शायद पैसे मेरे ज्यादा बन गए होते, बट हो सकता है मेरी लर्निंग उतनी नहीं हुई होती, हो सकता है। बट आज मेरी जर्नी में मुझे गिर गिर के वो समझ आ गया कि हर स्टेज पे आपकी एनर्जी अलग लेवल पे लगेगी। तो अगर आपने अपना स्टार्टअप 100 करोड़ का बना लिया है, तो उसको 1000 करोड़ बनाने के लिए वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदिति लगेगी। अग्रीड। वो सेम आप कहोगे कि मैं, अब वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस। तो मेरे हिसाब से एक ही लाइफ है, उसको ऐसे 50-50 डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो दोनों में मजा आना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं और 24 घंटे कहीं जा रहा हूं और मैं, मेरे धंधे में कुछ भी होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं हो सकता। डजंट वर्क लाइक दैट। सो यू कांट कट इट आउट, यू नीड टू ओन इट। सो इट विल बी डार्क नाइट्स, इट विल बी मिडनाइट ऑयल, इट विल बी पैनिक अटैक्स, इट विल बी वेरी लोनली एंड क्रेजी, बट इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि ऊपर से ब्यूटीफुल बहुत है यार, मजा बहुत आ रहा है। बट ऊपर तक कम पहुंच पाते हैं ना, हाँ, तो ठीक है, जर्नी इज टफ। सब लोगों को उतना मेहनत नहीं करना होता है ना। तो सब लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बने, सब लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बने, सब लोग ईसॉप्स लेने के लिए भी नहीं बने। और हमें सोसाइटी में सब लोग चाहिए। एक्सेप्टेंस। नो, यू नीड ना, सारे एंटरप्रेन्योर है तो उनके एम्प्लॉइज कहां से मिलेंगे? So for all of us, and this is about you, I would like to know that 20 something Nitin would have dreamt of doing what you are doing today. I never thought in my life मैं एक गवर्नमेंट स्कूल, रिफ्यूजी कॉलोनी, वेरी क्लीशे एरिया का बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लड़का हूँ यार।
तो डेफिनेटली नहीं सोचा था कि इतना कुछ करूंगा, बट आई थिंक अभी तो लॉट टू बी डन बिफोर आई हैंग माई शूज। कुछ एक फंड वंड बनाने का थोड़ा सा वो है, और लग रहा है कि 8-10 यूनिकॉर्न तो और निकालने चाहिए इन हाथों से। इट्स नॉट इनफ येट, बट आई एम वेरी प्राउड अबाउट माई जर्नी, एंड मजा तो बहुत आ रहा है और आया भी बहुत है। सो तो दिस इज अगेन फॉर ऑल ऑफ अस, इट डजंट मैटर आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, किस रिसोर्सेस के बीच में स्टार्ट कर रहे हो, इकोसिस्टम है नहीं है तो भी वी कैन हैव आवर ओन जर्नी लाइक दैट। सो दिस इज व्हाई आई आस्क, क्योंकि हम सब कभी ना कभी उस स्टेज से ही स्टार्ट करते हैं एक अनसर्टेनिटी के फेज में, एंड वी नेवर नो कि हम कहाँ जाएंगे, और हम कंप्लेन बहुत करते हैं, यार ये नहीं है, ये होता तो ये कर लेता। सो दिस इज व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन। so it's a only I'm sorry, I only give you 2-3 things here. एक, अपने लिए करो, किसी के लिए मत करो। आप अपनी मूवी के खुद के हीरो खुद हो। आपकी लाइफ में आपसे इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है, पहला। दूसरा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर पैदा हो गए हो तो कुछ भी ऐसा नहीं कि जो इम्पॉसिबल है। सोचोगे तो हो सकता है, अगर सोचा है तो हो सकता है, अगर मार्स पे जाने का सोचा है तो हो सकता है, करेक्ट। और तीसरा, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, यू जस्ट डोंट गिव अप, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स फॉर एनीबडी, मतलब आई एम टेलिंग यू, डोंट टेक नो एज अ नो। कोई मतलब ही नहीं है कि कोई आपको मना करते हैं कि ये तू नहीं कर सकता। कौन है वो? हाउ कैन दैट पर्सन डिसाइड व्हाट यू गोना डू और अचीव इन योर लाइफ? Everyone's success, you have to go through that 99 no's and saying कि ये 99 लोग रिजेक्ट करेंगे, we should be okay with that यार। मैं तो I'm an outcome of failure, and I'm telling you, कुछ ये just do this, at least youngsters do this. So just 2 cents from my side, from my journey. So हम सब यहीं से हैं, इंदौर से। So I just want to say कि जो ये बोल रहे हैं, just do each and every word, reach out to people, talk to as many people as you can. किसी को founder चाहिए, supporting चाहिए, partner चाहिए, just random message on LinkedIn, I guess. I met him 8 years back and today he is here as a friend, as a mentor, as an investor. आपको भी वो बस एक अप्रोच की जरूरत है। So many communities are working here in Indore with good intent. हमारे community partners like iShiros, Head Start, ISA, and there are many more who are trying to contribute as much as they can. They all need your support. तो आओ उनसे मिलो। इनफैक्ट whoever need any help in initial setup of a startup, initial mentorship guidance, if you think we are capable of that, all of us who are here, just reach out. बस हमें हमारा इस कंट्रीब्यूशन का एंड रिजल्ट वही है कि अगर यहाँ से कुछ लोग और आगे निकलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। This initiative by Super Sourcing is for the same intent. And why I'm saying this, because this is the last event for this season from our side. But we are still in the city. Next year कुछ और करने की कोशिश करेंगे. And whoever came here as a speaker, we will try कि अगर आपको कभी उनकी help लगती है, we'll reach out to them on your behalf. So just do it, guys. कहीं से भी कर सकते हो, हम लोग सब हेल्प करने के लिए रेडी हैं। इनको भी लिंक्डइन पे रीच आउट करो जहां भी पॉसिबल है। ही इज ऑलवेज देयर। मतलब थैंकफुली टचवुड, आई एम रियली ब्लेस्ड, जितने भी लोगों को हमने अभी तक यहाँ बुलाया या हम जिनसे भी मिले, दे आर ऑल बीइंग वेरी सपोर्टिव इन दिस जर्नी। बट ये लोग हमें नहीं मिलते अगर हम रीच आउट नहीं करते, हम लोगों से जाके बात नहीं करते और अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते ओपनली मीन्स विदाउट थिंकिंग कि वो अगला बंदा हमें जज करेगा। अगर हम ये सोचेंगे, कभी पूछेंगे नहीं, तो हमें हमारे प्रॉब्लम्स का कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर तो दूर की बात है, को फाउंडर भी नहीं मिलता, वो भी ऐसे ही मिलते हैं। सो कीप ऑन अटेंडिंग सच इवेंट्स, रीचिंग आउट पीपल, शेयर योर स्टोरीज एंड मेक फ्रेंड्स एंड योर नेटवर्क। थैंक यू नितिन। Claps for Aditi. So my personal learning for today from Aditi is, knock each and every door, be beshram. Rejection means nothing, you try one more time. Okay? And the magic is in this room, nowhere else. Thank you guys. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you Nitin.
And I'm really grateful having you here again in this city and meeting our people. And I hope you are having a great time too. And hopefully next time when we will be having him here, हमारे यहाँ से कुछ तो unicorns होंगे कि नहीं होंगे? Thank you. Thanks. Thank you.